returning officer would ask someone XYZ, or somebody would come make an allegation against somebody that he is dishonest or he owed me something and he has cheated me, etc. Parliament pegged it with a declaration by court of law. And that declaration now, as I go in greater detail, what that declaration would be, this is the safety valve which the Parliament had created, and unfortunately, from Ghafoor Lady to first Aladino Bhai, option could be that the Parliament goes ahead and decides the procedure, or there is a constitutional amendment, whatever might be the case. How could a court of law like us resolve this issue? Because under the current legal framework, such a declaration cannot be given. So what happens if there's a constitutional provision which becomes practically unworkable under the legal system? What do we do with that provision? My Lord, my respectful submission is, and I attend to my Lord's question, but if I may just first submit, that such declaration, now if we look at the courts of civil jurisdiction and see its declaration is given by a civil court, this sort of becomes a bit inconceivable, because in what situation would that declaration come out? But if this declaration in the form of a conviction is given by a criminal court, then there are several instances where conviction regarding the character, which is the honesty or dishonesty of a person, could be given by criminal courts and the penal court. As I just gave an example of section 403 of penal code, a person who dishonestly misappropriates somebody's property, upon conviction he is punished. Punishment is up to 2 years. 63(1)(h) is threshold doesn't get triggered because that is more than 2 years. So remaining under 3 years, under 2 years, there is a declaration of him having dishonestly misappropriated. It's not a civil declaration that's the problem. Civil declaration is a problem. Now, similarly, cheating, for example, is being deceitful, which is dishonesty. Sure. So again, it's 1 year. So वहाँ पे शायद आ सकता है, but civil declaration, as my Lord has just observed, I can't think of anything. So then, what is the answer? Now, my Lord, is the first question that since Ishaq Haqqani is pending, right? Ji. So unless we cross this hurdle, building a time frame and all that is a secondary question. So that is one. That is one. It is all. So it is best either you leave it to the Parliament to do a constitutional amendment or do whatever they want to come up with. For that, you don't need a constitutional amendment. Now, this is my second submission. मुझे एक चीज बताएं, ये हम फंस गए समीउल्लाह बलोच में। अगर जब ये खाकवानी का आपने जिक्र किया, मैंने अभी पूरा जजमेंट देख रहा हूँ समीउल्लाह बलोच का। ये कोई बहुत पुराना जजमेंट तो नहीं है, नेचुरली रेडार पे होगा, दुनिया भर के वकील इसमें पेश हुए, किसी एक ने जिक्र नहीं किया खाकवानी का। I find that very difficult। और उसमें जो सवाल उठाए गए थे, तो मतलब उसको नजरअंदाज कर दें, हम दूसरी तरफ चलते हैं, मतलब मुझे कुछ गैर मुनासिब लग रहा है। Questions had to be addressed. एड्रेस नहीं, कोई पुराना कोई नहीं, कोई 10 रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD में लिखा हुआ है उसको, तो वो पूरे जजमेंट में उसका तस्करा ही नहीं, और हम फंसे हुए समीउल्लाह बलोच में। हम खाकवानी पे क्यों ना जाएं? बिल्कुल जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा, जरूरी है। नहीं मगर नहीं, देखिए जो चीज हमें नहीं समझ आती है। अब सपोज एक मैं नया टर्म इस्तेमाल कर देता हूँ, मैं कल को आइन बदल देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ पार्लियामेंटेरियंस मस्ट बी इंटेलिजेंट। ठीक है, फेयर इनफ। कौन डिटरमिन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ करेगी? कर ही नहीं सकती है।
मैं ये आपको कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये कोई चीज भी कोई कोर्ट नहीं डिटर्मिन कर सकती, बिकॉज ये उनके जुमरे में आता ही नहीं है. कोर्ट डील विथ नॉट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, कोर्ट डील विथ टेंजिबल थिंग्स. हाउ कैन यू डिटर्मिन समवन्स ऑनेस्टी? एंड इट्स अ वेरिएबल. अ पर्सन में बी ऑनेस्ट टुडे, dishonest tomorrow, honest today, dishonest tomorrow. I don't know, people keep changing. So these are not the kind of determinative things. Probably the 18th Amendment brought in the word through a court of law to virtually kill it off, but they didn't realize they probably created more of a mess than the original wording. I don't know, that may be the intent. अब पार्लियामेंट ने काम कर लिया है, मुझे नहीं समझ आया. अगर उन्हें कर लिया है, चलें, गुड लक टू देम. उन्हें का 5 साल, फाइन. व्हाई कांट वी लिव विद इट? I mean, जब 7 मेंबर जजेस कह रहे हैं कि ये सवाल है, या तो उनको अटेंड करें. आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जी आप, मैं दूसरा जजमेंट लिख दूं, मैं उसको इग्नोर कर लूं. जब बिल्कुल वही चीजें हैं, वही इशू है, वही इलेक्शंस की बातें आ रही हैं और आप उस तरफ चल पड़े. सॉरी, मेरे हिसाब से आई एम रीडिंग मोर एंड मोर ऑफ जस्टिस कोसा's जजमेंट एंड आई फाइंड दैट द आंसर, यू कैन नॉट answer these questions. Not every question is answered. Some are answered in the hereafter. Some are answered, okay, if I take a vote today, no disrespect to you, is Mansoor Awan an intelligent person? Maybe some will say no, most will say yes, I can assume. So these are opinions. I mean, you may hold a thing on myself, they'll have an opinion on me. But it's not something that I can get a declaration from a court of law. Declaration of court of law means that you cannot have a second opinion on the matter. End. Khatam. No, but having said that, the legislation that's come about is also ignored as Haqqani. Because where is the answer to what kind of a declaration should it be? It just answers the time frame. That's a secondary question. The legislation should have thought that there's a Risaq Haqqani raising all these questions. They should have explained where do we get such a declaration? How do we do it? What's the procedure as it mentions? But all these things are missing. So, I mean, we can't even get to the second question if we want to take it head on, unless we can come up with some sort of a sandwich definition of a जवाब में मैं ये कह सकता हूँ, कल शायद पार्लियामेंट करने दो उनको अपना काम. Fair enough. So I'm just saying that even if we were not to address this head on and come up with some sort of a sandwiched answer to a declaratory order or whatever declaration, it will lead to problems for the future again. Now, at the end of the day, we have to establish one thing once and for all. You believe not just in election. कराना ही तो एक प्रोसेस है. प्रोसेस से तो आपको कुछ मिलता नहीं है. Democracy means that the will of the people is reflected. The will of the people, whether they bring a constitutional amendment, whether they bring a legislative thing, it is the will of the people, whichever way you look at it. The next lot of parliamentarians will come, they will make a law saying this will be a lifetime ban, then we can consider its constitutionality. Our role should only be not to fill in the constitutional gaps if there are any. Our role should only be to examine legislation. Does it accord with the Constitution? And I would go back. I may not even agree with Parliament, but I will keep quiet about it. As a voter, I may do something else. So why are we getting bogged down in this business? Why are we doing this job? So if I may just address both of these questions, observations and questions. The declaration under 62(1)(f) has to be by a court of law, acting under a law or several laws. The law has to provide for which court will have to give that declaration, and then of course the entire process, including who will have the locus standi and the standard of proof which would be required for such declarations. Now what section 232 does is, and stops midway, is that it says that the procedure, manner and duration of qualification and disqualifications will be such as is provided under 62 and 63, and where there is no procedure, manner provided,
It will be such as The is legislature is actually not addressing that. Now, this declaration question has been left open. It is not the answer of not been first. addressed. It's not addressing the question. It is not. It is not now, the what it answer of only your thing first what it does is it says that whenever that declaration comes out, the effect of that declaration would be for 5 years. That's it. That's the only thing it does. How that will come out? Yes. Will come out. So I wish the wording was that the declaration is for that period. Yeah, it doesn't say that, but that's a separate issue. But I think that's a secondary issue. The main issue is, what do we do? I mean, we can't even say that this legislation has come up with an answer either. So declaration subject to due process of law. ये लिखा हुआ है. Due process of law, and then it says that the disqualification shall not exceed 5 years from the date of declaration. I'll tell you what Parliament did. Parliament has. उन्होंने कहा हम इसको बस छोड़ो, इस बहस में पढ़ो नहीं, 5 साल कर दो, खत्म. That's in a nutshell what Parliament did. अब we can't tell Parliament to craft a law this way, because in my mind this is the best way to proceed. This is their job. Our job is another job. Is it unconstitutional? My lord, one proposition was put forward: do not touch upon 232. You may need to touch upon 232 at another juncture. I tend to, I'm just speaking aloud for myself, I tend to agree with that. Nobody has challenged it. We assume it's okay till someone comes and attacks it. Maybe it's a very good attack. I don't know. Maybe they say, 5 saal bhi kyun? I don't know. Let's leave all these things. The fact is, someone has applied the mind and made a law. And that law specifically mentions all judgments of any courts. So that law has shown us respect in the sense that they have just, like my Honorable Justice Afridi has said, for the not lifetime thing. So they have kind of brought it about by this legislation 5 years over. अब ये बहस किसी और दिन के लिए रखेंगे हम, अगर जरूरत पड़ेगी या नहीं. ये ठीक है. And then also this important question. What do we say about declaration? Now, it seems that at the time of Samiullah, the court was pushed to do the work of the Parliament, and now again it is being presumed that we will do the work of the Parliament. And court has not said for the permanent disqualification, it is only as long as the declaration will remain in field. Again, I will put you this question: why the section 232 cannot fix the period of that declaration? It can, sir. Because, and I respond to there this. is no inconsistency between the Samiullah and the Act. Because 62(1)(f) has two components. One is this cause of this disqualification. This cause of this disqualification, and cause of disqualification is a declaration by court of law. So this declaration or this cause is rooted in law, resulting in a declaration by a court of law, and the consequence is constitutional, which is a person stands disqualified. Now, what the Parliament has done is it has limited and placed a certain limitation upon the cause, the declaration. The consequence stays where it is. Now, the declaration means the disqualification will remain in field for 5 years. In this case, 5 years. Section 232. Yes. Yes. And if, for example, if there was no 232(2) and Samiullah is overturned, then the disqualification would only be for that election. For that particular election, which is declared either void or a person is de-seated based on that declaration. He would become eligible after if Samiullah is overturned. But this law then places a certain limitation. It gives longevity to that declaration of 5 years, which, to my mind, my lord, Parliament in its wisdom thought that if under 63(1)(h) we had provided 5 years at that time, then because this declaration is coming under a law and for that constitutional amendment is not required, it is only perhaps fair that we give a cooling off period of 5 years. So what is the procedure to deal disqualification under section 6, under Article 63? Sir, now when a declaration is come and if the question arises, a person has become disqualified, then chairman or the speaker under clause 2, the question goes to them and then they refer to election commission. Under sub-article 2 and sub-article 3. That's right, sir. Article That's 63. Right, sir. That's right, sir. Mr. Ji,
Article 62(1)(f) says court of law. Whether criminal court is not court of law, and Yes. why in Samiullah Baloch it was restricted only to civil court. जी नहीं हो सकता मेरा ख्याल है अब पार्लियामेंट उसका क्या फैसला करती है वो पार्लियामेंट ने उसका एड्रेस करना होगा बट और अनलेस माय लॉर्ड्स आर माइंडेड टू होल्ड बट इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इट कुड बी बोथ इट कुड बी अ declaration by a civil court or a conviction by a criminal court which might entail these consequences but that is again it is assumed सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत जारी है और इस वक्त आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, साथ में जजेस के रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं। It is of the opinion that member has become disqualified. अगर ये these are again safety valves, my lord. No, safety valve तो है। इसका मतलब है कि अगर कोई declaration हो, despite that declaration, the election commission can undo that declaration. No, the election commission, for example, disregards that declaration. Yes. Then a person can come before your lordships or in the High Court under 199 go on to and say that here is a declaration. The validity of the declaration issued by court of law. Yes. So declaration. It is not the validity which can be questioned by the election commission or by the speaker or a chairman in that case. If they come to the conclusion that this declaration is actually not 62(1)(f) declaration, this is perhaps for an offence or something which is not covered. Mr. Mansoor, you've landed us in a bit of a more problem here. So the question was earlier that we were going along with whatever semblance of a declaration was given by Samiullah or civil litigation, original civil litigation. We thought we'll take that declaration and then play around with the duration period. Here the question is that there is no declaration and that's not really a declaration, and Isaaqa Kwani raises that question. Nobody has addressed it head on as to what could be such a declaration, and that declaration probably requires some serious thought from the parliament. So where does that leave us now? So my lord, what that leaves to your leaves you, the declaration so far given, people might come in due course to the courts that these declarations were not declarations by a court of law. I dare not. I put myself in the position of whatever that court is for the time being. I would say I cannot give this declaration. Bye. Take away your suit. Take away your plane. Take away whatever you want to do. I cannot do this. I mean, I cannot go into your hearts and determine what sort of human being you are. That's right. So taking that question further, what do we do with the constitutional provision now? So what happened here? It's unworkable. Wait till the parliament decides. My friend, इसका भी जवाब आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है। इसका बहुत आसान जवाब है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे, उनमें ज्यादा अकल और दानिश थी। उन्होंने 73 का आइन बना दिया। और उन्होंने एक साहब टहलते हुए आए, उन्होंने कहा हो कहीं ये लोग सर ना खड़ा कर लें, तो ऐसी चीजें डाल दो इसमें कि हर कोई जो मेरी मर्जी हो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकूं। अभी इस बात को हम क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको बात का एतराफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समीउल्लाह बलोच स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय इन द ड्यूरिंग मिलिट्री टेकओवर। बिल्कुल बिल्कुल। So I mean the revival of I don't know why we so 1985 but 18th amendment the niceties of grammar and English and we are forgetting the overall picture. 18th amendment. The problem is that 18th amendment में वही मसला है ना कि इधर आपने देख लिया क्या हालत हुई थी पाकिस्तान में, वो भी हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस बात की? जरा सी उन्होंने लैंग्वेज बदल दी तो उन्होंने पता नहीं पूरा पाकिस्तान came to stand still. We must realize that there are issues which are exploited for personal ulterior motives. My lord, gain certain political advantages. ठीक है? Now, once we are not a court of law that we should shy away. We are a court of law, upholding the Constitution of Pakistan.
Constitution does not, rightly or wrongly, does not provide a time period. Why should I fill in what the Constitution has intentionally left, even if I accept it at par with every other constitutional provision, something brought in by a military dictator? भाई उन्होंने नहीं किया, वो जाने, मैं क्यों काम उनका करूं? नहीं, आपको जरूरी करना है, क्यों? भाई देखें, absence is also a decision. If I don't decide to do something, I'm deciding something. Parliament has elected to remain, leave it aside. We also leave it aside. My lord, अगर वो कल कोई कानून साजी करेंगे, हम देख लेंगे उसको. Mubashir Hassan case में, my friend Ahmed Qayyum read out paragraph 115 from Mubashir Hassan, where the full court held that 62 is not a self-executory provision. 62(1)(f) is not a self-executory provision. And they were judges थे? जी, sir, it was a full court. It was, I believe, 15 or 17. Full court थी, sir. What context was that? So they were looking at examining 62(1)(f) because it was NRO which was under challenge. NRO under challenge था, तो उसको वो देख रहे थे, and उसमें 62 को उन्होंने examine किया, 62(1)(f) को, and they went on to hold that it is not a self-executory provision. And by that, I think it doesn't explain it in that detail, but perhaps the rationale behind that was that because there is a declaration by a court of law which is required, then there is a law or several laws must also provide some mechanism how that declaration is to then come out. I mean, now, what has happened here is that 232(2) provides a time frame for the longevity of that declaration, but it does not then address the 4 questions which were left open by. I mean, this constitutional silence has really got us. नहीं sir, अब आप उसका ये कर सकते हैं. Options here. Either you leave it to the parliament. Elections are around the corner. Leave it to the parliament. Till then, what is the status of this provision? So this provision is, as the Supreme Court held, is not a self-executory provision. It requires making a law. The law has to be made, and that is for the parliament to do. नहीं, अगर ये इन्होंने wording लिखी है specifically, मैं मुबशिर हसन देख रहा हूँ. मुबशिर हसन में जरा गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. पैराग्राफ 115. हाँ, 115 में 17 जजेस हैं, यानी कि फुल कोर्ट. It is true that अच्छा. The provisions of Article 62 of the Constitution cannot be pressed into service because it is a provision of Constitution which is not self-executory. तो ये तो फिर बुनियाद ही उड़ा देता है बाकी जजमेंट्स की. इससे अगर मैं डिसएग्री करना चाहूँ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हम सारे जजेस भी बैठ जाएं, फिर भी हम 17 नहीं पाएंगे. Did Ishaq Haqqani look at this? Ishaq Haqqani did not, I think. तो Ishaq Haqqani probably realized. Ishaq Haqqani was perhaps अच्छे सवाल हैं, मगर इनका जवाब नहीं मिल सकता. But Ishaq Haqqani would have, if it had gone on to examine it, I think this question would have come. Or that because this provision actually requires making of a law by the parliament to give effect to this. There is a reference to a judgment, Muhammad Afzal versus... Yes, is Raja Muhammad Afzal versus Muhammad Altaf Hussain. तो फिर 1986, 1736, it said that self-executory finding तो आती है. That judgment said that it's a declaration. I think this has clarified something. Mubashir Hassan said puts an end to it. Is a definite finding. It's an inert, innate provision. Yeah. So as D, E, and G, for example, now they operate on their own, perhaps more so an appeal to the electorate. Yeah, then they F also is an appeal to the electorate. After this finding, they just join the family of the rest. You see, D, E, and G. They all become nice inspirational guidelines that we must have a parliament like this. That's it. That's it. And if we have an appropriate law providing for how that declaration would have to come forth, it is in a way, which is any judgment.
see that. Yes. But what Mubashir Hasan, what 232.2 does is, it does provide for the duration part. It does not provide for the procedure and manner part. In Samiullah Baloch, Mubashir Hasan was mentioned or no? No, I don't imagine, sir. I did not come across more. ये मुबशिर हसन में कहा है कि which is not self executory, ठीक है, बट अब समीउल्लाह में अगर हम देखते हैं, समीउल्लाह में उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने भी सेल्फ एग्जीक्यूटरी तो नहीं कहा है, उन्होंने भी कहा है कि जजमेंट होना चाहिए सिविल कोर्ट का. देयर मस्ट बी सम डिक्लेरेशन बाय द सिविल कोर्ट. ये उन्होंने कहा, और ये उन्होंने जरूर कहा, और ये अल्ताफ, ये उन्होंने जरूर कहा कि जी डिक्लेरेशन होना चाहिए. एंड परहैप्स ये नहीं, पढ़े ना, जरा वापस आइए, एक रीडिंग 114 पे आए, पैराग्राफ पेज 423 ऑफ मुबशिर जी, उसकी एक रीडिंग ये हो सकती है. नहीं, वो पढ़ेगा, इट इज ट्रू, जरा देखिए उसमें, तो फिर आगे वो कह रहे हैं पैराग्राफ 114 का लास्ट जो है, इट इज नॉट that self-execution. It is true that section, it's Article 62(1)(f) of the Constitution cannot be considered self-executory. Again, is relevant. But if a person involved in corruption and corrupt practices has been finally adjudged to be so, then on the basis of such final judgment, his candidature on the touchstone of 62(1)(f) of the Constitution can be adjudged to the effect whether he is sagacious, righteous, non-profligate. So how is it to be judged? तो उन्होंने भी नहीं छोड़ा. So उन्होंने भी लिमिट कर दिया where a person is involved in corrupt practices. It actually perhaps goes a step further to say that एक आपके खिलाफ conviction आ गई कि आपने cheating की है 415 की, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब वो आ जाएगी तो फिर देखेंगे कि आप फिर dishonest थे, फिर भी थे कि नहीं थे. So in corruption and corrupt practices तो ये NAP का reference है. NAP का reference. जी, वो तो NAP है. Mubashir, Dr. Mubashir's case will not be 14th and 16th of December 2009. That's right. Whereas the 18th Amendment declaration by court of law came later. में आया. तो इसलिए ये उस हद तक नहीं, उस हद तक ये आप उस पे रिलायंस नहीं कर सकते. वो ठीक है सर बात, but what it does say is, it does the part of paragraph. क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर में टाइम नहीं था दिया हुआ. जी ठीक है. के ऊपर, where the court holds that if there is some finding of corruption or corrupt practices, because it was examining it in that context, comes out and a person is convicted, then he will again have to be adjudged. That's right, sir. So वो जो declaration by court of law की जो insertion है, that insertion actually initially the little hope that you built has disappeared. तो गुंजाइश छोड़िए कि जी corrupt practices में involved भी हो, उसके खिलाफ judgment भी हो जाए, फिर भी वो adjudicate दोबारा किया. वो adjudicate, that's what it says. And then 62(1)(f) also perhaps goes on to hold as much. On a lighter note, if you permit, Attorney General. In the morning, on the reference, I had quoted Winston Churchill, and probably Winston Churchill can again be quoted on a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. So I don't know, maybe that is appropriate. And I just wanted to mention, there may be questions why all the judges are not here during the reference. A judge has had eye surgery, another is indisposed, 2 out of the country, and 2 on holiday. So everyone else present here was at the reference. My Lord. So maybe Churchill comes to our rescue. My Lord. It's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. My Lord, the situation now, you had 2 questions before yourself in the first order, which my Lord. वो तो 3 member bench का था. पहला ही सवाल सर. नहीं, हम वही ना, मैं आपके सामने तो ये था कि समीउल्लाह बलोच और 232 में से क्या चीज चलनी है. I think no one across the aisle has seriously disputed or has seriously, other than Mr. Bidari perhaps, has defended Samiullah Baloch. Because Samiullah Baloch does not answer. Serious problems with it. He also said there are serious deficiencies. I think that's the word he used. And in my respectful submission, there are actually very acute, serious problems with it, because it does not
provide answers to the questions which go to the very root of what can happen under 62(1). Because, I mean, we are all relying on Samiullah Baloch thinking that primarily it decides that once a disqualification takes place, it goes for life. The more important aspect of it is, where is that declaration first coming from? And what is that declaration which Ishaq Haqqani says, please understand that. So they're not assuming that they've written it. They said that it's coming out of original jurisdiction, civil original jurisdiction. Is that the correct answer is something that we need to understand. Because it stops there, then forget about the period. And also one more aspect, because Samiullah assumes that it would be a civil declaration. It disregards what Ishaq Haqqani had just noted, and it also disregards Justice Ijaz Afzal Khan's majority opinion in Panama 1, 2017, Supreme Court 265, where when he said what would be the court of plenary jurisdiction, he said it could be both civil or courts dealing with both civil. If it's a criminal conviction, then it has automatically taken care of in 63, you see, so it has to be civil. Because if there is a conviction, automatically it gets sorted in 63. No, but 63 then... You don't have to really think about 62. No, all convictions are not covered. All convictions are not covered. As for example, I said cheating punishment is 1 year. Now 63(1)(h) doesn't cater to it, but it could be covered under 62(1)(f). There could be other instances also. Dishonest misappropriation of property, 2 years. So 363(1)(h) doesn't get triggered, but 62(1)(f) could. So if it's criminal act, then for that purpose, complainant has to be considered. Who will be the complainant? If it is during the election process, then of course the election commission can submit a complaint before a court. Wherefrom, if order is passed against a person, conviction is ordered, then it will again be placed before the RO that the person so and so is. For example, under the Election Act, there are several offences. Corrupt practices ke hai, illegal practices ke hai. Personation is one of the offences, which is deceitful, being deceitful and dishonest. इसको तो corrupt practices में मुबशर हसन में declare कर दिया कि this corrupt practices इसको उस ज़ुमरे में लेके आए. वो हो सकता है ना सर. उसमें जैसे आप अभी जैसे my lord has कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जारी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए, किसी ने यह नहीं कहा यह मामला फेडरल शरीयत कोर्ट के अख्तियार में है। इस्लामी मामलात पर दायरा अख्तियार तो शरीयत कोर्ट का होता है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तयन करे कि सियासतदान की अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। इसहाक खाकवानी केस में आसिफ सईद खोसा का नोट पढ़ें, चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जबकि नईम जवाद इस ख्वाजा ने फैसला दिया कि कोर्ट ऑफ लॉ का तयन बाद में किया जाएगा। आम खबर शामिल करेंगे। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। अहम पेशरफ, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर एक बड़ी पेशरफ है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसकी मतन क्या था करारदाद का और इसके अंदर किस किस ने हिस्सा लिया है, अहम खबर से आपको आगाह करें। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था, जिसमें अरकान की तरफ से सेनेटर्स की तरफ से इज़हार ख्याल किया गया और फिर करारदाद पेश की गई। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अहम खबर, अहम पेशरफ्त, सेनेट का इजलास जारी था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत और इसमें इंतखाबात को मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अहम पेशरफ्त इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से और सेनेट के अंदर इंतखाबात को मुलतवी कराने की करारदाद को पेश किया गया, जिसे कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया है। इसके हक़ में और मुखालफत में किस किस ने वोट दिया है, किस किस ने किरायदही इस्तेमाल किया, इससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अहम पेशरफ से आपको आगाह करें, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। करारदाद का मतन क्या था, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वक्कास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वक्कास, अपडेट कीजिएगा।
ये बिल्कुल देखें, चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी के ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी था कि इसी दौरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोदा बाबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और उसके अलावा आज़ाद सेनेटर दिलावर खान की जानिब से नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल किया गया और उनकी जानिब से मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर जो वो तशवीश का इज़हार करते हुए एक करारदाद पेश की गई सेनेटर दिलावर खान की जानिब से। और उस करारदाद में ये मुतालबा किया गया कि आम इंतखाबात के हवाले से मुल्क के जो हालात हैं अमन अमान के वो साजगार नहीं है। बलूचिस्तान में भी अमन अमान की सूरत हाल इस वक्त जो वो पुरअमन नहीं है, बल्कि फाटा समेत दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ आए रोज़ होती जा रही हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान, अहमद वली खान समेत दीगर जो सियासी रहनुमा है उनके ऊपर कातलाना हमले हो चुके हैं, दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं, जबकि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो सूरत हाल है वो पुरअमन दिखाई नहीं देती। इसके साथ साथ उन्होंने अपने करारदाद में ये करारदाद के मतन में इस चीज़ की तरफ भी निशानदेही की कि कोरोना वायरस के हवाले से जो वो एक बार फिर फैलता दिखाई दे रहा है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये तशवीश की जा रही है कि कोरोना वायरस में जो वो एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने में आएगा। इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र अमन व अमान और ख़ास तौर पर आम इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को इनका इनेकाद होना है उसे मुलतवी किया जाए। जब ये करारदाद पेश की गई तो मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर अफनानुल्लाह हैं उनकी जानिब से इस करारदाद की भरपूर मुखालफत की गई, जबकि बाकी दिगर जो सेनेटर थे तकरीबन 14 के करीब सेनेटर उस वक्त ईवान के अंदर मौजूद थे, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर यहाँ पर मौजूद थे, आज़ाद सेनेटर फाटा अरकान जो यहाँ पर सेनेट के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुरदीप सिंह भी इस वक्त ईवान में अंदर मौजूद थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सेनेटर फनानुल्लाह ने इस करारदाद की मुखालफत की और बाकी तमाम सेनेटर ने इस करारदाद की हमायत की कि आम इंतखाबात मुलतवी होने चाहिए, जिसके बाद ये करारदाद कसरते राय से मंजूर होगी। जब करारदाद मंजूर होने के बाद सेनेटर फनानुल्लाह ने नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल किया और उनकी जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया तमाम सेनेटर्स को, तमाम सियासी जमातों को। उनकी जानिब से ये कहा गया कि दूसरी जंग अजीम के दौरान भी जो इंतखाबात होते रहे, सियासी जमातें जो आज आम इंतखाबात के मुलतवी की बातें कर रही हैं वो 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में मुलतवी की बातें क्यों नहीं की गई। उनकी जानिब से ये करारदाद किसी सूरत जो है वो काबिल अमल नहीं है और ना ही काबिल अमल हो सकती है। मुल्क में आम इंतखाबात जब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे उस वक्त भी इंतखाबात का इनेकाद हुआ, ऐसी सूरत हाल में अब भी इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। इस वक्त जो फाटा अरकान हैं उनकी जानिब से यहाँ पर तकरीर की जा रही हैं करारदाद के हक में और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्क में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस करारदाद की रोशनी में आम इंतखाबात का इनेकाद मुलतवी होना चाहिए। जी वकास, कोई तारीख का तयन भी किया गया था इस करारदाद में कि कितने मुलतवी होने चाहिए इंतखाबात? जी बिल्कुल, देखिए आम इंतखाबात की तारीख का तयन तो यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को जिसका इनेकाद होना है उसके मुलतवी के हवाले से मुतालबा किया गया है इस करारदाद में कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इस वक्त साजगार नहीं है, चूँकि दहशतगर्दी के वाक़यात पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, सियासी जमातों के ऊपर के रहनुमाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं दहशतगर्दी के। उसके अलावा जो इंतखाबी रैलियाँ हैं उनको जो वो टारगेट किया जा रहा है। तो अमन अमान की इस सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात को मुलतवी होना चाहिए, लेकिन ये इंतखाबात कब तक और मुलतवी होने चाहिए इसके हवाले से कोई टाइम फ्रेम इस करारदाद में नहीं दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी भी आज जो है वो सेनेट में मौजूद थे और उनकी जानिब से भी इजहार ख्याल किया गया और अमन अमान की सूरत हाल पर उनकी जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए ये मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी जमातें अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ दें। मीडिया को भी उन्होंने कहा कि मीडिया नुमाइंदे और मीडिया के लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ दें ताकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल जो वो कंट्रोल की जा सके और इंतखाबात के हवाले से माहौल को साजगार बनाया जा सके। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है वो साजगार नहीं है, जिसकी वजह से आम इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल दिखाई देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर कोदा बाबर बल्कि बहरामंद तंगी की जाने से कहा गया, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेनेटर कोदा बाबर हैं उनकी जानिब से भी इजहार ख्याल करते हुए इस करारदाद के हक में की हमायत की गई। दीगर जो सेनेटर इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और आज़ाद सेनेटर जो फाटा से थे उन्होंने भी इस करारदाद की हमायत की है। जी तादाद के बारे में बता सकेंगे वकास, कितने अरकान ने इसकी हिमायत और कितने ने मुखालफत की?
जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त अगर ईवान की बात की जाए तो जिस वक्त यह करारदाद दिलावर खान सेनेटर की जानिब से यहाँ पर पेश की गई, उस वक्त मजमूई तौर पर 14 अरकान सेनेट इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद थे। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफरानुल्लाह की जानिब से इसकी भरपूर मुखालफत की गई और वोटिंग में भी उन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया, बल्कि जो दीगर सियासी जमातें हैं, अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज़ाद अरकान की और उसके अलावा जो फाटा के और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अरकान थे वो यहाँ पर उनकी जानिब से इसकी हमायत की गई, जबकि जमात इस्लामी के जो सेनेटर थे मुश्ताक खान वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। मरकजी जो क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो भी इस वक्त सेनेटर्स जो अक्सरियत थी वो यहाँ पर ईवान से गैर हाजिर रही। सिर्फ 14 सेनेटर्स ईवान के अंदर मौजूद थे जब यह करारदाद सेनेटर दिलावर खान की जानिब से पेश की गई। इससे पहले जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेनेटर हैं कोदा बाबर, उनकी जानिब से नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तशवीश का इज़हार किया और इस चीज़ की जानिब आम इंतखाबात के मुलतवी होने की जानिब निशानदेही कराई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे बहरमान तंगी, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से माहौल साजगार नहीं है। तमाम सियासी जमातों को सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना चाहिए ताकि मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से साजगार माहौल पैदा हो सके। जिसके बाद सेनेटर दिलावर खान की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद पेश करने से पहले रूल्स को मुअत्तल किया गया और रूल्स मुअत्तल करने की तहरीक भी मुतफिका तौर पर मंजूर की गई, जिसके बाद सेनेटर दिलावर खान की जानिब से करारदाद पेश की। उस करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया कि आम इंतखाबात का इनेकाद जो 8 फरवरी को होना है उसको मुलतवी किया जाए। जी तो वकास, क्या ये करारदाद जिसे मंजूर किया गया है इंतखाबात के मुलतवी करने की, क्या काबिल अमल भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं आम इंतखाबात से मुतल्लिक? जी बिल्कुल, देखिए आम इंतखाबात के करारदाद के हवाले से बात की जाए तो क्योंकि एक पार्लिमानी प्रोसेस है, उस पार्लिमानी प्रोसेस के जरिए प्राइवेट मेंबर के तौर के ऊपर यह करारदाद आई है, जो कि हुकूमत की जानिब से कोई भी नुमाइंदा, कोई भी वजीर, निगरान वजीर इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद नहीं था कि वो इसकी हमायत या मुखालफत करता, जिसके पेश नज़र सिर्फ जो सेनेट अरकान थे वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं की जानिब से ही ये करारदाद प्राइवेट मेंबर के तौर के ऊपर पेश की गई, जिसे मंजूर किया गया है। अगर देखा जाए तो नाकाबिले अमल ये करारदाद दिखाई देती है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया और हुकूमत की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आने तक जो वो कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि सेनेटर जो निगरान वजीर हैं उनकी जानिब से वो भी, उनकी नुमाइंदगी भी इस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी किया जाएगा। जी ठीक है, और एक बार फिर से अगर आपसे जानना चाहें कि किन अरकान की तरफ से इसकी हिमायत की गई और किन की मुखालफत की गई, क्योंकि आपने जो बताया उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स भी इस करारदाद की हिमायत कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखें जब सेनेट का इजलास जुमे के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ तो सबसे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कोदा बाबर ने नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल किया और उनकी जानिब से आम इंतखाबात के मुलतवी होने की जानिब इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में साजगार माहौल नहीं है, जिसकी वजह से आम इंतखाबात का इनेकाद ऐसे हालात में मुमकिन नहीं। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमान तंगी ने नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल किया और उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए साजगार माहौल नहीं है। तमाम सियासी जमातों को, मीडिया को, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना चाहिए ताकि मुल्क में साजगार माहौल पैदा हो, अमन अमान कायम हो, ताकि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। जिसके बाद आज़ाद हैसियत में जो सेनेटर यहाँ पर मौजूद थे, सेनेटर दिलावर खान, उनकी जानिब से पहले करारदाद पेश करने के लिए रूल्स मुअत्तल करने की तहरीक पेश की, जिसे मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। जिसके बाद सेनेटर दिलावर खान की जानिब से करारदाद पेश की गई। उस करारदाद में मुतालबा किया गया कि मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए अमन अमान ज़रूरी है और इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है वो दुरुस्त सही नहीं है, जिसकी वजह से 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ये मुतालबा करारदाद में किया गया, जिसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जो सेनेटर है, सेनेटर अफरानुल्लाह, उनकी जानिब से इसकी भरपूर मुखालफत की गई और वोटिंग में भी करारदाद के मुखालफत में वोट दिया। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर गुरदीप सिंह, पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमान तंगी और दीगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया है इस डेवलपमेंट से मुतल्लिक। अहम पेशरफ्त है, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस पर बात करने के लिए एंकर पर्सन रहमान अजहर ने हमें ज्वाइन किया है। रहमान साहब, किस तरह देखते हैं इस टाइमिंग को और करारदाद का पेश किया जाना, फिर इसे कसरत राय से मंजूर हो जाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम तो बड़े वाज़ेह आम इंतखाबात को लेकर, काबिल अमल होगी ये करारदाद? देखिए, ये एक राय हो सकती है और सेनेट के जो सरप्राइजिंगली जो मेंबरान हैं और उन्होंने कसरत राय से जो है वो ये मंजूर की है, तो ये एक सेनेट की राय के तौर पर इसको जो है वो जरूर देखा जा सकता है। लेकिन जहां तक इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, इलेक्शन की तारीख आ चुकी है। मां सवाए इसके कि एक अखलाकी तौर पर एक आर्गूमेंट है और एक ऐवान ये समझता है कि इलेक्शन को आगे जाना चाहिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई कानूनी तौर पर इस करारदाद का कोई असर होगा। लेकिन देखिए, ये बात हैरानकुन जरूर है कि एक ऐसा ऐवान जिसको मुंतखब करने वाले वो इलेक्टेड मेंबरान हैं जो कि मौजूद नहीं है, वो हाउस जो कि मौजूद नहीं है, और जो हाउस इलेक्ट करने वाला है उसी के मुतालिक जिनको इलेक्ट किया गया उस हाउस की तरफ से वो राय दे रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो अभी जो है वो ना करवाया जाए। मैं नहीं समझता कि पार्टियां जिनके मेंबरान ने इस करारदाद की हमायत की है, क्या वो पार्टियां ऑन बोर्ड है। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के एक मेंबर ने जो है वो इसकी जो है वो हमायत की है, तो क्या पार्टी के जो मेंबरान हैं, पार्टी जो है वो ये समझती है कि इंतखाबात जो है वो आगे जाने चाहिए। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात का अभी भी सेनेट के अंदर तकारीर जारी है कि सिक्योरिटी का इशू है, मौसम का इशू है, ये इसमें इलेक्शन मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन इलेक्शन को मुलतवी करने का ये जवाब नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि आपके कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मसाइल को हल करें और सिक्योरिटी के मसाइल होंगे तो उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। तो पाकिस्तान में तो 1947 से ये सिक्योरिटी के मसाइल चल रहे थे, तो यहाँ पर आप कोई भी इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। तो मेरा ख्याल है ये एक सेनेट के ऐवान की, और ये भी उन लोगों की राय है जो मेंबरान ऐवान के अंदर मौजूद थे जी, उनकी राय के तौर पर इसको जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इंतखाबी शेड्यूल आ चुका है, अदालत भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, उस पर कानूनी तौर पर इस करारदाद का कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है रहमान साहब, आपने इज़हार ख्याल किया। इस वक्त अरकान सेनेट भी इज़हार ख्याल करें और कार्रवाई जारी, अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। बुनियर के पार्डर के साथ, और बुनियर आप जो IDPs जब आए थे तो कहाँ से आए थे? उसी बुनेर एरिया से और स्वात से। तो इस किस्म की दहशतगर्दी पहाड़ों में हो रही है, तो इससे कुछ फर्क चेयरमैन साहब नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का जो 8 फरवरी का जो डेट है, बसर चशम हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के खूबसूरत जवान वो शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और इस तरफ हम कहें कि इलेक्शन करो। इलेक्शन किस लिए कर रहे हैं आप मुझे बताएं? 62,000 अरब से इन्हें 120,000 अरब पे ले जाने के लिए कर रहे हैं, और क्या है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ तक पहुँचाया किसने? वो खुदा के लिए ख्वाजा फकीर इलाही को मत लाओ कि बूढ़ी को इंजेक्शन लगाए और मर जाए। शुक्रिया जी। पहले अफनान साहब की सुन जी। सेनेटर अफनानुल्लाह खान प्लीज़। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं जो है वो मेरे सारे ऑनरेबल कोलीग्स हैं सेनेटर बिलखुसूस बलोचिस्तान के और पख्तूनख्वा के, और मैं उनकी दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं करना चाहता, और अगर उन्हें कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरा चाहता हूँ। तो आगे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और मैं साथ ये भी एक बात वादे कर दूँ कि जो शहीदों की जो कुर्बानी है, वो जो मतलब कि ज़ाहिर है वो उसका अजर तो अल्लाह ही उन्हें देगा। इस दुनिया में तो ज़ाहिर है आपको जिसने अपनी सब कुछ इस मुल्क के लिए दे दिया उसको कोई क्या उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। तो हम जनाब चेयरमैन मुसलमान हैं ज़्यादातर,
मेजॉरिटी हम मुसलमान हैं, और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। ये अल्लाह ताला ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ना मौत उससे पहले आ सकती है, ना मौत उसके बाद आ सकती है, और इसके ऊपर बहुत सारे वाक़यात हैं, एक वाक़या नहीं है। आप इस पे हदीस में भी जा सकते हैं, आप कुरान भी जाके देख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि किसी की भी जो है वो कोई धमाका हो या किसी की जान ज़ाया हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है जो है वो मुल्क का एक निज़ाम है, वो उस निज़ाम से ही चल सकता है। हमने ये जो तजुर्बे किए हैं ना, ये जो 62,000 अरब रुपए हैं ना, ये तजुर्बों की कीमत है। एक 1970 में तजुर्बा किया कि इलेक्शन हो गए और गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही नहीं की, क्योंकि हमें पसंद नहीं थे वो बंगाली। तो उसका जो तजुर्बे का नतीजा आया वो भी 62,000 में डाले। फिर वो जो तजुर्बे बीच में और लॉन्च हुए, मैं आप किस किस का नाम लूँ, वो तजुर्बे करते करते ही 62,000 हुए हैं, वो एक दिन में थोड़ी हुए हैं। तो ये कह देना कि क्योंकि 62,000 अरब रुपए का कर्जा को 134,000 अरब रुपए करना है तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये पिछले 6 महीने में क्या कर्जे नहीं बढ़े? या आप लोगों ने कोई गारंटी दे दी है कि आप कर्जा नहीं बढ़ाएंगे, या आप मुझे लिख के दे दें, बल्कि आप ये लिख के दें कि हम कम करेंगे कर्जे। और जहां तक बात है इलेक्शन डेट की, जनाब चेयरमैन, फरवरी 2008 इलेक्शन हुआ, फरवरी 1997 इलेक्शन हुआ, दिसंबर 1970 इलेक्शन हुआ, मार्च 1977 इलेक्शन हुआ, नवंबर 1988 इलेक्शन हुआ। ये सब सर्दियों में हो रहे हैं जनाब चेयरमैन, ये मैं सारी सर्दियों के इलेक्शन गिनवा रहा हूँ आपको। तो ये जो है, ये मैं ये फिर दोबारा वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि किसी को कोई तकलीफ पहुँचे, लेकिन ये हमारी तारीख रही है। इस मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आप कह रहे हैं 5,77,00,000 लोग जो हैं उसमें कत्ल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1944 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, 1945 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ, 1940 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ। हम कोई बुज़दिल कौम में क्या हम रोए? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन, दर्जनों धमाके हुए उस महीने जिस महीने इलेक्शन हुआ। 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश सुन ले। सुने, आपके कुलीग हैं, बात करने का हक है उनका, जी बोलने देंगे आप 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए उस महीने के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं? या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? मुझे बताएं, क्या मुल्क इस तरह चलेगा बगैर आईनी इदारों के, बगैर प्रोविंशियल असम्बलीज के, बगैर नेशनल असम्बली के, बगैर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के? क्या मुल्क ऐसे चलेगा जनाब चेयरमैन? और फिर जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वाज़े स्टेटमेंट आ चुकी है जनाब चेयरमैन, और मैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है और ये इंशाल्लाह पत्थर पे लकीर होगी। हम इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे। ये कोई बात है कि हम डर जाएं? और हम वो ये जब 2013 और 8 का इलेक्शन हो रहा था, दादा हमले पंजाब में होते थे, तब हमने तो नहीं कहा कि इलेक्शन ना कराएं, या हम हार रहे हो इलेक्शन तो हम कहेंगे इलेक्शन ना कराएं, या हमारे मुफादात के हिसाब से इलेक्शन हो वरना इलेक्शन ना हो? ऐसे तो नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि मेरी गुजारिश मैं खत्म कर रहा हूं, मैं लंबी नहीं है। ये मेरी गुजारिश ये है कि ये कहा गया जनाब चेयरमैन कि बिजली नहीं है इलेक्शन ना हो, गैस नहीं है इलेक्शन ना हो, ये कहा गया। मेरी गुजारिश तो सुन ले मेरे प्यारे भाई। जी मेरी गुजारिश, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर अभी ये कहा गया कि बिजली नहीं है इसलिए इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा कि गैस नहीं है इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा गया कि स्कूल नहीं बने हुए, कि ये कह रहे हैं बाजोड़ में स्कूल नहीं है तो इलेक्शन ना कराएं। अब थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गैस सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब एक बात करें, मैं देता हूं सर, देता हूं आपको। थैंक यू सर, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब।
मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब, इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है जनाब चेयरमैन साहब। खुदकशी जो है ना वो हराम है, इनको शायद ये पता ना हो। खुदकशी में और बहादुरी में बहुत फ़र्क है, ये कोई डर की वजह से नहीं है। हमें 72 साल सर 72 साल हमने कबाइलियों ने इसी नाम पे कुर्बानी दी कि हमें सिर्फ यह कहा जाता था कि आप बहादुर और गयूर कबाइली हो। ये उस वक्त कहाँ पे थे? ये वेस्टर्न बॉर्डर 72 साल तक किसने महफूज बनाया था? कुछ वहाँ पे दहशतगर्दी का वाकया तो नहीं हुआ था उस वक्त, मगर ये तो हालात दुनिया के बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया में एक गेम चल रही है और जिसमें उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है जिन्होंने लाशें देखी हुई है वहाँ पे, जिनके सामने 12-12 लोग ज़बा हुए। अगर चाहिए तो मैं वीडियो आपके सामने ला के दिखा सकता हूँ। 12-12 लोग एक दिन 1 घंटे के अंदर ज़बा हुए। इलेक्शन क्या इलेक्शन क्या करे, क्योंकि वो तो अफनान साहब प्लीज नो क्रॉस टॉक। चेयरमैन साहब ये इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भी ये लिसानियत और इलाकाइयत की तरफ बात लेके जाना चाह रहे हैं। हम चुप है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बोलते रहे। हमने हमारी लाशें गिरी है, इसकी कोई लाश गिरी है? पहले जनाब चेयरमैन साहब रखें प्लीज, तशरीफ रखें अपनी निशिस्तों पे प्लीज। आखिरी जुमला मैं कहता हूँ, मोअज़्ज़ज़ अराकीन तशरीफ रखें। जनाब आखिरी जुमला जी आखिरी सुन लें जी प्लीज। आखिरी जुमला जनाब चेयरमैन साहब, हम इलेक्शन के जी बिल्कुल कुर्बानी है आपकी किधर। प्लीज अफनान भाई प्लीज सुन लें, पाकिस्तान सेनेटर अफनानुल्लाह प्लीज सुन लें जी। पूरा पाकिस्तान बाहर खा के बाहर चले गए सर, अभी आए हुए अभी शिकार है हमें। हाँ सारे बाहर लेके चले गए। अभी क्या मुल्क का क्या हाल है, इकोनॉमिकल क्या हालात है मुल्क के। अभी इनको बताया गया कि प्लेइंग फील्ड इनके लिए सही है तो ये वो कर। हम इलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनके पार्टी से मैं आपको 50 करोड़ रुपए का मैं वो लगाता हूं कि इनके पार्टी को मैं इस तरह हराऊंगा, एक बच्चे से भी हराऊंगा अपने हल्के में, एक बच्चे से भी हराऊंगा इनके पार्टी को। हाँ ये तड़िया नहीं है वहां पे। प्लीज आप लोग जज्बाती ना बात करें, अपनी फ्लोर पे आप लोग मुअज़्ज़ज़ सेनेटर हैं, अपनी बात करें प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब हम बिल्कुल आदाब से बात कर रहे हैं, वो बीच में बोली जा रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना जनाब, जवाब तो देना। मैं कोई बात मैंने नहीं की, आपने तो जेब में हाथ डाला था, हमने तो बोला ही नहीं है कभी। नहीं मैंने नहीं कहा मैंने बात नहीं की, मैं ऐसे बात नहीं करता, आपकी तरह मैं नहीं करता। जनाब चेयरमैन साहब हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो मगर किसी का खून ना बहे। जिनका ज्यादा खून गिरा है वो ज्यादा ही चीखेंगे। हम चाहते हैं कि ये इनको तो मतलब एक किस्म का प्लेइंग फील्ड मिल चुका है तो ये कोशिश करें, ये 17-18 महीने हुकूमत की कुछ तो कर लेते ना, अभी कुछ करे, थोड़ी सी सिक्योरिटी हमें दे, इलेक्शन करे, कल करे हमारे साथ, ज्यादा देर नहीं चाहिए हमें इनसे इलेक्शन लड़ने की। मतलब तो सर ये क्यों ये हकीकत नहीं मानना चाह रहे? रेजोल्यूशन पास हो गया तो मेरे ख्याल से क्यों नहीं मानना? थैंक यू जी आप लोग जी सेनेटर थैंक यू, तशरीफ रखिए हिदायतुल्लाह खान साहब। ऑनरेबल सेनेटर प्रिंस उमर साहब, प्रिंस उमर बहुत देर से बात करते हैं जी बैठे, तशरीफ रखें सेक्रेटरी जनरल साहब। सबसे पहले तो मैं और खान साहब का शुक्रिया। अहम खबर आपको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। आपको ये बता देंगे सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस की बराह रास्त समाअत की और अब इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाez के रिमार्क्स भी सामने आए। कहते हैं कि फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाez की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7
7 रुकनी बेंच कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है और किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि आज केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाez का कहना था, हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क को तबाह कर दें कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहली कर देती है। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस काजी फाez का कहना था कि हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज और इसकी जुबान तक महदूद क्यों कर रहे हैं, हम आइनी तारीख को बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक के लिए भी कोई काम किया गया? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है जो कि किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का केस फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं सुनाएंगे, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। कोशिश है मुख्तसर हुक्मनामा जल्द से जल्द सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया और इसको सुनाया जाएगा बाद में। शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं सुनाएंगे, यह भी कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं, जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांजेब, बताएगा फैसला कब सुनाया जाएगा? अतर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल कर ली है। बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि आर्टिकल 184 की आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से जो नाअहली की मयाद है वो ताहयात है या 5 साल है, क्योंकि अदालती फैसला समीउल्लाह बलोच के जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल ताहयात किया गया था और फिर पार्लियामेंट ने कानून साजी की जिसमें यह करार दिया कि नाअहली जो है वो 5 साल होगी। तो ये दोनों तजादात की वजह से ये कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तों को सुना, फैसला महफूज किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह वाजे किया है कि हम शॉर्ट ऑर्डर आज तो जारी नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जल्द जारी कर दें। ये बहुत अहम केस है और इस केस का जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसके ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे। नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 232 की ज़ैली शिक 2 है उसको बरकरार रखने जा रही है। इससे जिन सियासतदानों को फ़ायदा हो सकता है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, दीगर भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनको इससे फ़ायदा होगा। इस केस की समाअत के दौरान ये सवाल बहरहाल ज़रूर उठा कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, डिक्लेरेशन कौन देगा, कहां से डिक्लेरेशन 62(1)(f) के तहत दिया जाएगा। ये वो तमाम सवालात हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फैसले में इनको एड्रेस करे और फिर जैसे कि इस बेंच में मौजूद कुछ जजेस का ये व्यू था, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार ये सवाल उठाते रहे कि क्या हम पार्लियामेंट को ये कह सकते हैं, पार्लियामेंट को ये गाइडलाइन दे सकते हैं कि वो इसका तयन करे कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, डिक्लेरेशन कहाँ से आएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। आज की इस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो बड़े दिलचस्प और अहम थे। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि इसाक खाकवानी केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ये कह चुका है, ये असूल तय कर चुका है कि 62(1)(f) का मामला जो है कि मुद्दत नाअहली की मुद्दत कितनी होगी इसका हम इस वक्त तयन नहीं कर रहे। जबकि मुबशर हसन केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच था उसने ये होल्ड किया कि आर्टिकल 62(1)(f) को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, उसको 63 के तनाजुर में पढ़ा जाएगा। तो इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी हैरत का इजहार किया कि वो 5 जजेस जिन्होंने नाअहली की मयाद ताहयात मुकर्रर की उन्होंने जो है वो इस इसाक खाकवानी केस का जो फैसला है उसको क्यों नज़रअंदाज किया या मुबशर हसन केस जो है उसको क्यों नज़रअंदाज किया। गुज़िश्ता समाअत के ऊपर भी चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि पिक एंड चूज़
क्यों होता रहा? कभी नाअहली 5 साल कर दी जाती रही 62(1)(f के तहत और कभी ताहयात। तो ये वो बहरहाल अदालती फैसलों में भी ये तफरीक मौजूद है। कभी 62(1)(f के तहत नाअहली ताहयात कर दी गई, कभी 5 साल कर दी गई 62(1)(f के तहत। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर जुडिशरी के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही थी कि इसके ऊपर कोई असूल तय होना चाहिए, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट ने भी इस ज़रूरत को समझा कि इसको तय होना चाहिए और फिर एक कानून बनाया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। दिलचस्प बात यह है कि इस इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232(2) को किसी सियासी जमात ने किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया। आज भी जब ये बात हुई कि सेक्शन 232 की ज़ैली शिक 2 है, इसको सुप्रीम कोर्ट रीड इन करे, कम से कम इसको डिफाइन करे, तो इस पर तमाम 7 जजेस का ये व्यू था कि ये कानून साजी हमारे सामने चैलेंज ही नहीं हुई, तो हम इसलिए इस लॉ को नहीं देख सकते। हम सिर्फ वो फैसला समीउल्लाह बलोच केस का फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि नाअहली ताहयात होगी, हम सिर्फ उस हद तक रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सेक्शन 232(2) है उसको कभी भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद को महदूद रखा है सिर्फ इस फैसले की हद तक, और अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करने जा रही है कि ताहयात नाअहली होगी या जो कानून बना है, पार्लियामेंट ने बनाया है 5 साल जिसकी मुद्दत तय की गई है, वो प्रिवेल करेगा। आज इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग को अगर हम एक जुमले में सम अप करें तो ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो इंतखाबी एक्ट की सेक्शन 232(2) है उसी का ही इतलाक होगा, और सुप्रीम कोर्ट मजीद क्या इसके ऊपर गाइडलाइंस देती हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगा, डिक्लेरेशन कैसे दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, ये काफ़ी अहम है। जी ठीक है जहां से बाबासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आपको हम खबर देते हैं, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, शेड्यूल को मुअत्तल किया जाए। करारदाद मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले भी हुए, करारदाद में ये कहा गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है और इस वजह से इन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। इसके साथ साथ दिलावर खान ने यह भी कहा कि JUIFA के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला किया गया। KP और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, जबकि एमल वली को भी तशवीश है। सेनेटर दिलावर खान का मजीद कहना था कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट हैं। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करवाने पर अमल करे। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है, जबकि नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत करते हुए कहा कि मैं सेनेटर दिलावर खान की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूं। मुल्क में सिक्योरिटी के लिए हालात ठीक नहीं है, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे भी ज्यादा खराब थे। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद में ये कहा गया है मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावर पर हमले हुए हैं। एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं। करारदाद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है, ये भी करारदाद में कहा गया। इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। करारदाद के मुताबिक आपको बताएं कि महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना वबा के फैलाने का इंदिया दे रहा है, ये भी इस करारदाद में कहा गया है। जनवरी और फरवरी में बलूचिस्तान के कई इलाकों पर मौसम सख्त होता है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ऐवान में पहुंच गए और निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा के करारदाद की जानिब से मुखालफत की गई है। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद दूसरी बार भी कसरत राय से मंजूर। अफनानुल्लाह सेनेटर की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है।
सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद में ये कहा गया है मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए हैं। एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं। करारदाद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है, ये भी करारदाद में कहा गया। इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना वबा के फैलाने का इंदिया दे रहा है, ये भी करारदाद में कहा गया। जनवरी और फरवरी में बलूचिस्तान के कई इलाकों पर मौसम सख्त होता है। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे। एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान अजहर साहब, किस तरह से आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे, करारदाद भी मंजूर कर ली गई है? देखिए, ये हैरान कुन है कि कैसा ऐवान जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है वो ये कह रहा है कि जिस ऐवान ने उसको इलेक्ट किया है उसका जो इंतखाब है उसको मुलतवी किया जाए। और उसमें जो एक तो ये बात समझने की जरूरत है कि ये सेनेट की राय जरूर हो सकती है और ये सिर्फ उन लोगों की राय है जो ऐवान के अंदर मौजूद थे, उस वक्त मौजूद थे। और उन लोगों में से जो मेजॉरिटी है, जो कसरत राय है, उसने ये इजहार किया है कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इस पर इसका कोई कानूनी असरात नहीं। ये विल ऑफ द सेनेट, इसको जो है वो जो सेनेट के मेंबरान वहां पर मौजूद थे उनके मुतालिक जो है इसको जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन इसका कानूनी तौर पर जो इलेक्शन शेड्यूल है इस वक्त, क्योंकि अदालत भी उस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, फिर अदालत ने उसमें जो रुकावटें आ रही थी उनके हवाले से भी अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो ऑर्डर दिया है। और 8 फरवरी की तारीख है, इलेक्शन कमीशन भी तैयारी कर रहा है। तो अब ये बात समझ से बालतर है कि सेनेट के जो मेंबरान हैं और कुछ मेंबरान मैं कहूँगा वो ये चाहते हैं कि ये जो इंतखाबात हैं वो आगे चले जाएं। मेरा ख्याल है इस मुल्क के अंदर जो माहौल है, जो अदम इस्तेहकाम है, इससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही निकाल सकता है। और इस वक्त जो हालात हैं उसमें इलेक्शन की हमारे मुल्क को भी जो है वो जरूरत है। जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं या मौसम की जिन सख्तियों का जिक्र किया जा रहा है, ये यकीनन असरअंदाज जरूर होती हैं, लेकिन ये ऐसे मामलात नहीं हैं कि जिनकी बिना पर यह कहा जाए कि इंतखाबात जो है वो उनको ही आगे ले कर जाया जाए। आगे ही इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मुल्क अफवाहों की जद में है। ये अफवाहें किसी हद तक खत्म हुई थी जब अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया था और अभी बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन्स शुरू कर दी हैं। और देखिए, लेकिन अगर इस करारदाद से जो पेचीदगी है, जो सवालात थे कि इलेक्शन होने हैं या नहीं, उनको एक मरतबा फिर से तकवीर जो है वो मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि सेनेट के मेंबरान जो हैं वो इससे बेहतर तौर पर जो है वो अपने खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते थे। लेकिन ये कहना कि इंतखाबात को ही मुलतवी कर दिया जाए, मेरा ख्याल है इससे जो ऑलरेडी एक माहौल है, जो पेचीदगी इस वक्त है, जो इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात हैं, वो उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। सही। रहमान अजहर साहब, आप कह रहे हैं, आपकी राय में ये जो सेनेट की जानिब से करारदाद मंजूर की गई है इसको सिर्फ राय के तौर पर ही देखा जाएगा, कानूनी आइनी तौर पर या इस करारदाद पर अमल करना कराना प्रैक्टिकली इंड्यूस नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल, ये सेनेट की कोई जो करारदाद है या फिर कोई और भी अगर कोई करारदाद हो, पंजाब असम्बली से हो, कौमी असम्बली से हो, इसको उस हाउस की एक विल के तौर पर देखा जाता है। और हाउस की विल ये है कि जो ऐवान के अंदर अरकान मौजूद हों तो वहाँ पर यह करारदाद पेश की जाती है और उस करारदाद के हक में और मुखालफत में वोट आते हैं और उस जो मेंबरान मौजूद होते हैं उनमें से जो है वो अक्सरियत जो फैसला करती है उसको करारदाद को मंजूर कर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसका कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई असर नहीं है, इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर भी कोई असर नहीं है और ना ही जो अदालती ऑर्डर है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से उनके ऊपर कोई असर पड़ता है। लेकिन एक बात इसमें हैरान जो कि जरूर है कि जो पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, उन्होंने भी इसकी हिमायत की है।
तो क्या उन्होंने अपनी पार्टी से पूछकर जो है वो इस करारदाद की हमायत की है कि इंतखाबात आगे चले जाने चाहिए? अब देखिए, सेनेट के अंदर 14 अरकान उस वक्त जो है वो मौजूद थे। ये आप लोग भी जो है वो अभी स्क्रीन के ऊपर जो है वो बता रहे हैं। तो 14 अरकान के होते हुए इस करारदाद का मंजूर होना यकीनन ये सवाल निशान जरूर है कि एक सेनेट का एक पूरा ऐवान है, उस ऐवान में से 14 अरकान मौजूद थे और उन्होंने उनमें से जो है वो कुछ ने ये करारदाद मंजूर कर लिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसको सेनेट की विल के तौर पर भी देखा जाए या ना देखा जाए, ये एक अलग से बहस है, लेकिन इसका कानूनी तौर पर कोई असर नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ना ही इलेक्शन के शेड्यूल के ऊपर, क्योंकि ये करारदादें होती हैं, ये कोई बिल नहीं था। ये एक इजहार किया है सेनेट ने अपनी राय का, और वहाँ वो भी 14 मेंबरान, उनमें से अक्सरियत ने जो है वो इजहार किया है। तो ये इसका जो कानूनी तौर पर जो इस वक्त शेड्यूल जारी है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। रहमान नज़र साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह आप भी बात करें, आम इंतखाबात को लेकर बहुत सारे सवालात हैं और इलेक्शन शेड्यूल पर इसका कोई असर नहीं है, तो क्या समझते हैं आप ये एक उजलत में किया गया फैसला है? क्या राय देंगे? नहीं, उजलत में नहीं किया गया। देखिए, कुछ खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान वो बार बार इस बात पर बात करें कि मौसम की बड़ी सख्ती है, उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात का भी जिक्र किया है, और यही दो चीज़ें जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर सेनेट के मेंबरान ने भी उसका जिक्र किया। और अब एक और चीज़ जिसका उन्होंने जिक्र किया है वो कोरोना वबा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा के केसेस भी फैल रहे हैं और वो भी हमारे खदशात हैं। अब तो ये खदशात किसी न किसी तौर पर मौजूद है, लेकिन ये चंद पार्टियों के मौजूद हैं और इससे कोई अच्छा तासुर नहीं जाता। इससे ये तासुर ये जाता है कि शायद वो सियासी जमातें अभी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं हैं या इंतखाबात से घबरा रही हैं, और ये खदशात का इजहार कहीं ना कहीं पर मौजूद है। और इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से मैंने जैसे पहले जिक्र किया, जो क्या सराइयाँ हैं, जो अफवाहें इस वक्त चल रही हैं, देखिए इसका असर उम्मीदवारों पर पड़ता है। उम्मीदवारों ने बाहर निकलना होता है, उन्होंने अपनी कैंपेन करनी होती है, उन्होंने पैसे खर्च करने होते हैं। तो आप एक उम्मीदवार से किस तरह एक्सपेक्ट करें कि अगर उसको ये 100% यकीन ना हो कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, तो वो शायद उस तरह से नहीं निकलेगा, वो अपनी उस तरह से कैंपेन नहीं करेगा। हमारे मुल्क में इंतखाबात इससे पहले भी जो है वो आगे जा चुके हैं, 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने थे, लेकिन वो भी आगे चले गए। तो इस तनाजुर में भी अगर देखें तो इंतखाबात जो कि पहले आगे जा चुके हैं, इंतखाबात के हवाले से पहले से बहुत सारे सवालात हैं। ऐसे माहौल के अंदर सेनेट की इस करारदाद का आना, मेरा ख्याल है ये अफवाहों को तक़वियत देगा। अगरचे मैं समझता हूँ कि इंतखाबात अभी भी 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से ये महज अफवाहें हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि इंतखाबात आगे जाने चाहिए, लेकिन जो अफवाहें हैं उनको इस तरह की करारदादों से और इस तरह के जो अवामिल होते हैं उनसे तक़वियत जरूर मिलती है। और मुल्क में जब आप कहते हैं कि एक भरपूर तरीके से इंतखाब हो, लोग अपनी राय का इजहार करें, तो वो इन तमाम सवालात के होते हुए हो नहीं सकेगा। इंतखाबात पर ये असरअंदाज एक तरह से जरूर होंगी, और जो सबसे अहम बात है कि वो उम्मीदवारों जिन्होंने बाहर निकलना है, जिन्होंने कैंपेन करनी है, तो उनके जहनों में ये जरूर सवाल होंगे कि शायद ये किसी के कहने पर ये करारदाद मूव की गई है, या कोई चाहता है मुल्क के अंदर करारदाद जो इलेक्शन ना हो, और फिर जो है वो जो इस तरह की अफवाहें हैं उनको तक़वियत मिलती है। तो मेरा ख्याल है रहमान नज़र साहब, क्या मुसायका है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए? अगर ऐसा हो सकता है तो क्या होगा? मौसम की सख्ती की बात की जा रही है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कुछ रहनुमाओं को थ्रेट्स मिले भी हैं, या एक फैक्शन ऐसा भी है जो ये कहता है कि निगरान हुकूमत के तहत अब मईशत के हालात बेहतर हुए हैं और आम इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमत में मईशत की ये जो बेहतरी है ये ज़ायल हो सकती है। इन सब मामलात को भी नज़र में तो रखना चाहिए। देखिए, सवाल आपका अच्छा है कि इंतखाबात क्यों ताखीर से नहीं हो सकते। फिर तो अगर हम इसकी एक दूसरी तरफ जाएं तो फिर तो मुल्क में जमहूरियत ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो बराह रास्त एक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए, किसी एक को वज़ीर आज़म 5 साल के लिए बनाए और दूसरे को 5 साल के लिए बनाए। अभी देखिए, हमारा मुल्क एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। पहले तरीके अदम एतमाद आई, उसके बाद जो हालात रहे उससे संभल नहीं सका। खुद मानते हैं जो PDM की सियासी जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत ली, उनको एक तगड़ी ऑपोजिशन का सामना था, लोगों के सेंटिमेंट्स और थे, और उस सूरत हाल के अंदर वो मामलात को उनके लिए चलाना भी मुश्किल हो गया था। फिर
पीडीएम की जो सियासी जमातें थी उनकी हुकूमत जो है वो गई, निगरान हुकूमत आई, लेकिन इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने थे, लेकिन मरदमशुमारी की वजह से वो आगे चले गए। इससे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात जो कि आईनी तौर पर 90 रोज के अंदर करवाने थे, वो इंतखाबात भी आगे गए। अब अगर यही सिलसिला चलता रहा, यही माहौल रहा, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप जिस इस्तेहकाम की, जिस बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं वो नहीं आ सकेगा। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात है, मुल्क आइसोलेशन में नहीं चलता। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात है, पाकिस्तान के इदारों ने चलना होता है, मुल्क को पॉलिसियों की जरूरत होती है। एक वजीर आजम आता है, वो 3-4 साल जितना भी वक्त उसके पास होता है वो अपने तरीके से मुल्क को एक सिमत देता है। ये जो एडहॉकिज्म है या जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, ये मुल्क को सिमत नहीं दे सकती और ना इनका काम होता है मुल्क को सिमत देना। ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होती है। तो मेरा ख्याल है इंतखाबात की इस वक्त इसलिए भी जरूरत है कि इस मुल्क को एक सिमत चाहिए, इस मुल्क को एक इस्तेहकाम चाहिए। एडहॉकिज्म के साथ आप मुल्क को नहीं चला सकते। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप जरूर चला सकते हैं, लेकिन जो कार्य सरकार होते हैं, जो मामलात चलाने होते हैं हुकूमतों ने, वो इस एडहॉकिज्म से नहीं चलते। इसीलिए इस मुल्क के अंदर जरूरत है ये हम अब क्योंकि काफी अरसा इसके अंदर जो है वो गुजार चुके हैं, अब ये वक्त जितना गुजरता जाएगा उतना मुल्क के लिए नुकसानदेह। पहले भी जितना वक्त गुजरा है वो नहीं गुजरना चाहिए था, लेकिन अब भी जितना वक्त गुजरेगा 8 फरवरी से आगे आप जितना लेकर जाएंगे, इससे इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे सवालात उठेंगे और मुल्क को सबसे अहम बात है कि सिमत की जरूरत है। वो सिमत नहीं है मुल्क को जो है वो दस्तयाब होगी या मिलेगी। अच्छा रहमान नज़र साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, तो अगर इसी तरह मामलात रहे तो फिर तो इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए, सिक्योरिटी के खदशात होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा मसला है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे दोनों इतराफ में जो है वो हमारे हमसाए हैं, वहाँ से हमें दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। मुल्क के अंदर हमारे ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जिनसे हमें खतरा रहा है। लेकिन ये खतरात क्या नए हैं? क्या ये खतरात जो है वो अभी पिछले 2 महीने के अंदर आए हैं या 1 महीने के अंदर आए हैं? ये खतरात इससे पहले भी जो है वो मौजूद रहे हैं। पाकिस्तान तो जंगें जो है वो लड़ चुका है, तो 1947 से आपकी सिक्योरिटी के मामलात यही हैं। सिक्योरिटी के मामलात को एड्रेस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंतखाबात को ही मुलतवी कर दो और इंतखाब ही ना करवाएं। सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर करने का मकसद ये होता है कि आप सिक्योरिटी को बेहतर करें। हमारे मुल्क के अंदर एक आसान तरीका ढूंढ लिया जाता है कि या तो वो चीज करो ही ना या वो काम करो ही ना, तो उसको आप बेहतर करने के बजाय सिक्योरिटी के मामलात कोई ऐसे नहीं है कि आप जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप सिक्योरिटी के मामलात को चैलेंजेस जरूर हैं, इस बात से बिल्कुल कोई इनकार नहीं है, लेकिन इन मामलात को बेहतर किया जा सकता है। जहाँ पर सिक्योरिटी की जरूरत है, जहाँ पर खदशात है, वहाँ पर उनको और बेहतर तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह से जहाँ पर मौसम की सख्ती है, वहाँ पर भी कोई हल निकाला जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जो राय है उसका इजहार कर सके। अब अलबत्ता मैं समझता हूँ कि फरवरी के महीने में मुल्क के बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर मौसम इंतखाबात के लिए बिल्कुल साजगार होता है। इससे पहले भी ऐसे मौसम में इंतखाब हो चुके हैं। तो ये जो तमाम मामलात हैं, अगर आप इनको देखें तो इन दोनों को जवाब बनाकर, और खासतौर पर सिक्योरिटी वाले मामलात को, तो मैं समझता हूँ कि आप बजाय इसके कि वो इंतखाब मुलतवी करने के, आप ये क्यों नहीं करते कि आप सिक्योरिटी बेहतर कर दें। ये सेनेट के जो मेंबरान थे ये भी करारदाद मंजूर कर सकते थे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो दी जाए ताकि वहाँ पर पुरअमन इंतखाब को यकीनी बनाया जा सके। तो मामलात का हल निकालना होता है, मामलात को मजीद इल्तवा में डालना या मामलात को मजीद लटकाना नहीं। रहमान नज़र साहब, क्यों फिर इन मामलात को इतना पेचीदा बनाया जा रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी ऐसे खदशात का इजहार कर चुके हैं। एक समाअत के दौरान, एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स उनके सामने आए कि कुछ फैक्शंस, फोर्सेस ऐसे हैं जो कि इलेक्शन में रुकावटें डालना चाहते हैं। ये एंगल भी तो होना चाहिए कि क्यों ये फैक्शंस चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, क्यों कुछ तबकात ये चाहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट ज़्यादा देर चले। देखिए, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर है और कुछ लोग ये समझते हैं कि इस वक्त उनके लिए इंतखाब लड़ना ठीक नहीं है। वो अगर इंतखाब में जाएंगे तो उनको वो मतलूबा नतायज हासिल नहीं हो सकते जिनकी वो तवक्को कर रहे हैं, और इसीलिए वो लोग इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि मामलात जैसे चल रहे हैं इनको ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन बहसियत मजमूई जो हमारी सियासी जमातों से
बात हुई है और इस दौरान होती रही है। अभी पाकिस्तान की जो ज्यादातर सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि इंतखाबात वक्त के ऊपर हों, ताकि इस वक्त जो माहौल है वो इस माहौल से निकल सके। जिसकी भी हुकूमत आए वो आगे आकर मामलात को संभाले। देखिए, वो कहते हैं कि लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है वो मजबूत तरीन आमरीत से भी बेहतर होती है। तो चाहे इंतखाब में कोई जीतता है, कोई हारता है, इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे सवालात उठते हैं। कैसे हुए इंतखाब, ये तमाम के तमाम जो मामलात होते हैं ये हर इंतखाब के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, मामलात को हल करने की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि आप मामलात को जो है वो बिल्कुल ही लटका दें या फिर जिस तरह से इंतखाब का मामला है इस इंतखाब पर अमल ही ना करें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें भी इस वक्त चाहती हैं कि इंतखाबात हों, वो इंतखाब में जाना चाहती हैं। और ये मैं पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जिनको लगता है कि शायद उनके लिए भी माहौल साजगार नहीं है, तो वो जरूर ये चाहेंगे कि इंतखाबात आगे चले जाएं, ये इंतखाबात अभी ना हों। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है, उन सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि इस बात की भी क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद भी उनके लिए हालात साजगार होंगे, या जून और जुलाई के अंदर भी उनके लिए हालात इसी तरह से साजगार होंगे। तो मेरा ख्याल है उन सियासी जमातों को भी देखना चाहिए कि अगर इंतखाब होंगे, अगर ये इदारे होंगे, अगर पार्लियामान होंगी, तो ही सियासतदान जो है वो चलेंगे और तभी सियासतदान इस मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इंतखाब ही नहीं कराएंगे और इसी एडहॉकिज्म और इंटरिम सेटअप्स के साथ जो है वो आप मामलात को चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये ना तो मुल्क के इदारों के लिए बेहतर है, ना मुल्क की सियासत के लिए बेहतर है और ना ही मुल्क के लिए बेहतर। अच्छा रहमान नज़र साहब, ये भी कहिएगा कि मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। क्या समझते हैं अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो फिर किस तरह के असरात मुरतब होंगे, मामलात किस जानिब जाएंगे? देखिए, एक तो आपके मुआशी चैलेंजेस हैं जिनका इस वक्त आपको सामना है और वो शायद सबसे बड़े हैं। वो हमारी इस वक्त जो सालमियत है और हमारी जो खुदमुख्तारी है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। IMF के साथ मामलात हैं, आपके दीगर मुल्कों के साथ मामलात हैं, आपने प्रोजेक्ट चलाने हैं, आप निजकारी का सोच रहे हैं, आपने इदारे बनाए हैं जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी जो इदारा है, बैरूनी मालियाती इदारा हो या कोई भी हुकूमत हो, वो उस वक्त तक आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती जब तक आपके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ना हो। उनके लिए पहला सवाल यही होता है कि अभी तो आपके मुल्क के अंदर एक इंटरिम हुकूमत है, अगर ये हुकूमत चली जाती है और कल को दूसरी हुकूमत आती है तो क्या वो इन मामलात में अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेगी या नहीं करेगी। यही वजह है कि हमने देखा IMF वाला जब मामला हुआ था तो IMF का जो वक्त है वो यहाँ पर आकर सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा था, क्योंकि उनको गारंटी चाहिए थी कि अभी तो इंटरिम हुकूमत जो है वो आ रही है, लेकिन इंटरिम हुकूमत के बाद बिलफर्ज अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो क्या वो मामलात को उसी तरह से चलाएंगे, क्या वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे या नहीं। ये एक मिसाल है, अभी हालिया मिसाल है जो हमने देखी है। इसी तरह से आप यहाँ पर निजकारी की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो मालियाती चैलेंजेस हैं या मालियाती डीलिंग्स हैं ये उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आप के मुल्क के अंदर कोई 4-5 साल के अर्से के लिए कोई हुकूमत ना हो और उस हुकूमत नहीं सिमत देनी होती। वही सिमत है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। फिर सिक्योरिटी के मामलात हैं, आप सिक्योरिटी के मामलात देख लें, आपके बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन हैं, आपको फैसले करने हैं, खारजा पॉलिसी के हवाले से आपको फैसले करने हैं, दीगर इंतजामी मामलात हैं, ब्यूरोक्रेट की एक टीम आती है एक वजीर आजम के साथ, किसी भी सूबाई हुकूमत के साथ, वो आकर मामलात जो है वो चलाते हैं। इंतजामी मामलात उस वक्त तक नहीं चल सकते जब तक आप जो डायरेक्शन है उनको वाज़ेह ना हो। तो ये तमाम के तमाम इश्यूज ऐसे हैं कि इसमें मैंने जैसे पहले कहा ना कि ये जितनी ताखीर करते जाएंगे, जितना मामलात को जो है वो खींचते जाएंगे, उतना मुल्क के लिए बुरा है। तो बेहतर है कि किसी को भी आने दे, वो आकर मामलात संभाले और मामलात को चलाए, और ये तभी होगा जब इलेक्शन हो। सही। रहमान नज़र साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, क्या कहते हैं, सेनेट की इस करारदाद को किस तरह या किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए? इसका आम इंतखाबात पर क्या असर पड़ेगा या सिर्फ राय के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि 104 के अवाम में सिर्फ 14 लोगों ने एक करारदाद पास कर दी, जिसकी वैसे अददी लिहाज से भी कोई हैसियत नहीं है। दूसरा,
सेनेट की करारदाद जो है वो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती, और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसको भी मुतासर नहीं कर सकती। मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ एक आप समझें कि एक बॉल फेंकी गई है और उसका रिजल्ट चेक किया जा रहा है कि इसका क्या इफेक्ट आता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कुछ सीरियस लेना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर फैसला कर लिया है और उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, तो उसको ओवर रूल करना इतना आसान काम नहीं होगा। और ये मेरा नहीं ख्याल कि सेनेट की इस करारदाद का कोई फायदा होगा या इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत है। और ये जो तमाम खदशात हैं जिनका इजहार किया गया, मौसम की सख्ती, सिक्योरिटी थ्रेट्स या कुछ रहनुमाओं को थ्रेट्स भी मिले हैं, मईशत के जो हालात हैं निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी ज़्यादा बेहतर हैं, कुछ फैक्शंस चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हों, तो ये राय भी तो एक है। लेकिन देखिए मौसम तो हर साल आता है और बड़े इलेक्शंस हैं जो सर्दियों के अंदर हुए हैं। इवन जो 2008 का इलेक्शन है वो भी सर्दी में हुआ था और उस वक्त भी बर्फबारी हो रही थी और तूफान था पाकिस्तान के अंदर, बड़ा टेम्परेचर लो था। तो टेम्परेचर को वजह नहीं बनाई जा सकती और ना दहशतगर्दी को वजह बनाई जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर 2 दहशतगर्द हमले हुए 2007 में, और इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। और उसके बाद 2013 में देख लीजिए कितने खौफनाक किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ANP की क़यादत के ऊपर हमले हुए और वो रोज लाशें उठाते थे और अपनी क़यादत की लाशें उठाते थे, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हुए। तो ये कोई जवाब नहीं है कि सिक्योरिटी थ्रेट है या कोई मौसम का इशू है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको जवाब बना के इलेक्शंस को सस्पेंड किया जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त एक स्टेट ऑफ लिम्बो में है इस लिहाज से कि हर शख्स या हर मुल्क जो है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी देख रहा है और सब ये चाहते हैं कि कोई एक गवर्नमेंट आए जो कंटिन्यू करे और ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। निगरान हुकूमत जो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना वो किसी मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकती है, ना वो मुल्क को चला सकती है लॉन्ग टर्म इशूज तरीके से। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर हम आज ये समझ रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर आगे हो गई है या कोई डॉलर कंट्रोल हो गया तो ये वक्त ही है। जावेद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर साहब ने। सर आपके वक्त का शुक्रिया। कहिएगा किस तरह से देखते हैं 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसको मुलतवी कराने की जो करारदाद है वो पेश की गई है? देखिए मैं न सिर्फ बल्कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये अर्ज कर रहा हूँ कि न सिर्फ इस करारदाद की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, जमहूरियत दुश्मन करारदाद है, बल्कि उस तरीक़ेकार की उससे ज़्यादा शदीद मजम्मत करता हूँ जिस साजिशी तरीक़ेकार से ये करारदाद लाई गई है। ना तो ये एजेंडे पे थी कि जी ऐसी कोई करारदाद आ रही है, ना किसी को बताया गया, अलग से बुलाया गया। 14 आदमी वहाँ पे बैठे थे और चुपके से वो करारदाद निकाल के और सामने रख दी गई और उस पे जब देख लिया था कोरम भी नहीं था, कुछ नहीं था, अपने लोग लाके बिठा दिए गए और इस तरीके से। और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट को इस किस्म की साजिशों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो अपर हाउस के कस्टोडियन हैं, उनको जमहूरियत की और हाउस के वक़ार की जो है इज्जत एहतराम करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि अगर इस किस्म की उनसे कहा जा रहा है कि आप चुपके से जेब से निकाल के ये करारदाद रख दीजिए और इस पर वोटिंग करा लीजिए क्योंकि नमाज के बाद लोग आए नहीं है वहाँ पे, तो ये मेरे ख्याल से ऐसा तरीका है कि जो हम सब के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, सेनेट के लिए शर्मिंदगी का बाइस। ताज हैदर साहब आप क्या समझते हैं, इसकी कोई हैसियत है, कोई आईनी कानूनी कोई हैसियत है? कोई भी हैसियत नहीं है और इंशाअल्लाह पीर के दिन जब सेनेट खुलेगी तो हम एक कसरत राय से एक मजम्मती करारदाद लाएंगे उस तरीक़ेकार के खिलाफ भी जिस तरीके से ये आई है, और इस करारदाद को रद्द करने के लिए हम जो है वो एजेंडे के ऊपर लाएंगे। सही, उन फैक्शंस और फोर्सेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती हैं? क्या ऐसे मौके पर इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी हमले किए गए, मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ, इसके अलावा कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनको धमकियां मौसूल हुई हैं? देखिए ये तमाम हालात जो हैं वो इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप आइन के साथ नहीं खेल सकते। आपने पहले ही जो आइन के तहत मुद्दत थी और जो तारीख होनी चाहिए थी वो आपने नहीं उसको आगे बढ़ा दिया। अब फिर आप जिस वक्त के इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है तो इस किस्म की, और ये जो तरीक़ाकार है
कि भाई आप अच्छा, हमारे कुछ 3 सेनेटर्स वहाँ मौजूद थे, लेकिन जाहिर है कि वो पार्टी की हिदायत चाहिए कि साहब ये चीज़ है, इस पे हम क्या करें, डिस्कशन चाहिए आपस में कि इस पे हमें क्या करना है। अब एक शौक देना इस तरीके से कि बस जी ये हो गया, ऐसे तो नहीं चलता ऐवान। आप इस तरीके से ऐवान को चला रहे हैं, ऐवान की भी इज्जत है, सेनेटर्स की भी इज्जत है, ये साजिशी तरीक़ाकार मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। सेनेटर ताज हैदर साहब, ये भी कहिएगा इलेक्शन शेड्यूल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं जो करारदाद मंजूर हुई है? क्या ये फैसला जो है वो उजलत में किया गया? नहीं, ये फैसला नहीं किया गया, ये साजिश की गई। कुछ लोग साजिश कर रहे थे क्योंकि ये लिखी गई, ये रखी गई और इसको एकदम से जैसे ऊपर से इसराइल बम फेंक देता है, इसको सामने लाया गया। ये कोई तो तरीक़ाकार नहीं है। आपको रेजोल्यूशन जो है वो जमा कराना पड़ता है, रेजोल्यूशन को एजेंडे पे लाना पड़ता है और रेजोल्यूशन के लिए टाइम देना पड़ता है ताकि सेनेटर्स अपनी अपनी पार्टियों में बात कर सकें कि जनाब इस रेजोल्यूशन पे हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। बहैसियत एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ताज हैदर साहब कता कलामी के लिए माजरत, अब बहैसियत एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसी भी सूरत में किसी भी सतह के ऊपर उनको मुलतवी नहीं कराना चाहती। ये तो हम रोज जब भी ये बात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बल्कि जब 8 फरवरी की तारीख मुतय्यन भी नहीं हुई थी तब भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बार बार मुताला कर रहे थे कि जनाब इंतखाबात जो है वो उसकी तारीख दी जाए और उस तारीख पे इंतखाबात। हम कह रहे थे